everyone, how you all? कैसे हैं आप सभी लोग? I hope you all must be having a great time. And now we are moving ahead in our series where we have started UPSC other important examinations like CAPF, CDS, Geoscientists, previous year question series of last 5 years from 2020 to 2025. This is Polity's second part, guys. I hope you have seen the part first where we have discussed the 2025 Geoscientists and 2024 Geoscientists, CAPF and CDS. ठीक है. Now in this part we will be seeing, without wasting any time, the 2023 questions what have come in CAPF, CDS and Geoscientists again. Again, if you are directly coming to this video, watch the first part first, that is Polity part 1. History has already been completed in part 5, or in 5 parts we have completed history. Just go through that, right? Also watch this particular series at 1.5x speed, guys, so that you can cover it fastly, right? Because this is dedicatedly I am making for the civil services aspirants whose prelims is just about in 1 month, right? So without wasting any time, let us start, guys, with the Geoscientist 2023 question first. Now see, guys, these are some good questions and it is definitely must. Again, I'll be telling you कि ये must है आप लोगों के लिए while you are practicing ahead to go for this prelims examination of civil services, right? तो कभी कभार क्या होता है, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, रिवीजन प्रैक्टिस हो जाती है, कहाँ पे फोकस करना है किस पर्टिकुलर टॉपिक में. एंड एज आई यूज्ड टू से दैट समटाइम्स क्वेश्चंस आल्सो गेट रिपीटेड. ठीक है, सॉल्व दिस क्वेश्चन. सॉल्व कैसे करना है, पॉज करो, खुद रीड करो, दिमाग लगाओ, आंसर तक पहुंचो और फिर एक्सप्लेनेशन देख लो. थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड, मतलब फॉरवर्ड मत करना, लेकिन स्पीड को थोड़ा बढ़ा लो. चलो, दिस इज रिलेटेड टू AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 76, एंड यू हैव टू फाइंड आउट दैट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. इसको मार्क कर लिया आपने. द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ये कुछ अटपटा है दोस्तों यहाँ पर, और नॉट करेक्ट ही ढूंढना है, तो प्रोबेबल आंसर यही है, तो इसको मार्क करके रखो. लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बाकी स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे, हमेशा आदत डालो बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ो, बिकॉज सिविल सर्विसेज ऐसा गेम है कि दो बहुत प्रोबेबल आपको ऑप्शंस देंगे, बाकी एग्जाम में ऐसा नहीं आता. डायरेक्ट दे दिया इन्होंने कि ये गलत है. ठीक है, अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी, अब ये आपकी नॉलेज बेस बनाया. A person who is qualified to be the appointed a judge of the Supreme Court of India is appointed as the AGI. बिल्कुल सही. It is performance of his duties. The AGI shall have a right of audience in all courts in the territory of India. Right. Also, he has the right to appear or to sit in the assemblies or these क्या बोलते हैं आप, ये लोकसभा and राज्यसभा में also he can sit. Right. The AGI shall hold office during the pleasure of President of India. This is one post which is on the pleasure of President of India. This is also right. So incorrect one is this, because over here he is appointed by the President only, and he is at the pleasure of the President only over here, right? Let us go ahead. Which of the following words, phrases was not incorporated into the preamble to the Constitution of India by the 42nd Amendment Act? ठीक है, इंडिया बाय द 42nd Amendment Act के थ्रू कौन सा ऐड नहीं किया गया, ये देखना. Socialist word was added. Secular, okay, it was added. Unity and integrity of the nation, ये भी added हुआ था. Dignity of an individual was not added, guys. ये तो बहुत simple है, but again ये आपको highlight कर रहा है. It is again showing you that these are important over here under preamble. This is the topic of state election commissioner. जब आप देखते हो chief election commissioner और election commissioner जब देखते हो आप, और state और chief को देखते हो आप, center पे जो होता है उसके related question है ये. For state election, correct, you have to find out. The state election commissioner is appointed by the Election Commission of India. Is this right over here? This is wrong, because he is appointed by, again simple, he is appointed by the governor over here, guys. ठीक है, और ECI को कौन नॉमिनेट करता है आपको, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट. The state election commission can be removed only in the same manner as the judge of high court. This is right over here, because the chief election commissioner is removed only in the same manner as the judge of Supreme Court. और state election commissioner के लिए ये है, तो answer will be B, because you have to find the correct over here. Which one of the following statements relating to the duration of पंचायत? Again पंचायत guys over here. पंचायत से last time भी आपने क्वेश्चन देखा 2024 में, फिर देख रहे हो, और बहुत अच्छे पार्ट हैं, क्योंकि ये पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज आप जब बुक से रीड करते हो तो आपको समझ में नहीं आता क्या प्रोविजन उठाना है क्या नहीं उठाना. आपको ये क्वेश्चन ही सॉल्व करके देंगे कि व्हाट प्रोविजन यू हैव टू फोकस अपॉन. एवरी पंचायत शैल कंटिन्यू फॉर 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग. क्या पंचायत जो सेलेक्ट होती है वो 6 सालों के लिए होती है, 6 years के लिए होती है? नो, 5 years के लिए होती है, राइट. सो आंसर तो हमारे पास डायरेक्ट आ गया, नॉट करेक्ट का, बट अगेन वी विल बी रीडिंग एंड डेवलपिंग आवर नॉलेज. अब पंचायत कैन बी डिसॉल्व्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म. बिल्कुल डिसॉल्व हो सकती है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट लॉ, राइट.
election to panchayat must take place within 6 months of its dissolution. This is also right. That election should happen again. लेकिन अगर 4 साल पंचायत ने ऑलरेडी 4 साल 6 महीने पंचायत ने ऑलरेडी सर्व कर लिया और अगले 6 महीने के लिए नहीं हुआ है, तो इन 6 महीने में हम न्यू पंचायत के इलेक्शंस नहीं कंडक्ट करवाएंगे, बट वी विल वेट फॉर द नेक्स्ट पंचायत इलेक्शन टू हैपन जो फ्रेशली होने वाला है, राइट. This is also right. The panchayat reconstituted after premature dissolution shall continue only for a remainder of the period. This is also right, guys. ठीक है. अगर पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट मींस सपोज 2 इयर्स के बाद जो ए पंचायत थी वो कॉन्स्टिट्यूट करी गई, लेकिन इसको डिसॉल्व करना पड़ गया, तो अब 2 इयर्स के बाद 6 महीने में जो अभी वाला प्रोविजन देखो 6 महीने में एक दोबारा से री इलेक्शन हुए होंगे, तो ये बी पंचायत सेलेक्ट हुई, तो अब ये कितने टाइम के लिए रूल कर सकते हैं? 3 इयर्स के लिए, बिकॉज रिमेनिंग टाइम के लिए दे विल बी रूलिंग. I hope you must be knowing this. ये तो conceptual understanding है with related to पंचायत, right? Let us move forward. Which of the following, अब आप इन क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हो while revising again, तो ये सारे पॉइंट्स उस वक्त दिमाग में आने चाहिए जब आप वो रीड कर रहे होगे कंटेंट को, राइट. Which of the following statements regarding the president of India are correct? President of India very important, हर साल क्वेश्चन रहता है सिविल सर्विसेज में भी और बाकी एग्जाम में भी देख सकते हो. President of India is elected by an electoral college in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. Absolutely right. And can you tell me the electoral college for President of India and Vice President of India? Comment it down, guys. The elected members, इससे होगा क्या, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा बस, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा चीजें है, राइट. Second, the elected members of the legislative assemblies of Union Territories of Delhi and Puducherry take part in the election of the President of India 100%, because elected members they have specified over here. So C will be your answer now, guys. Which of the following statements regarding the panchayat system? Again a question on panchayat over here. 2 क्वेश्चन आपने पंचायत में देखे, तो पंचायत की नॉलेज तो आपकी जो सवाल आ रहे हैं पिछले 5 सालों में उनसे ही बन जानी चाहिए. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया envisages a 3-tier system of पंचायत. दिस इज 100% करेक्ट ओवर हियर. 3-tier system is there in पंचायत, जहां पर हमारी ग्राम पंचायत होती है, देन यू हैव इंटरमीडिएट लेवल, देन यू हैव द जिला समिति पंचायत समिति, देन द जिला परिषद. सेकंड, इंटरमीडिएट पंचायत स्टैंड्स बिटवीन द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट में आपका जिला परिषद हो गया, विलेज आपका ये रहा. ये जो इंटरमीडिएट पंचायत है वो वहां फॉर्म होनी चाहिए वेयर द पॉपुलेशन इज अबव 20 लाख से ज्यादा है. एंड दिस इज 100% राइट गाइज, ये आप नोट कर लो और 20 लाख को भी नोट कर लो, बिकॉज ये आपका लिखा हुआ है दैट वेयर टू कॉन्स्टिट्यूट. दूसरा प्रोविजन जो है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, वेयर टू कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, और उसमें सेकंड प्रोविजन इज दिस ओनली. हाईलाइट इट, रिमेंबर इट. थर्ड, ऑल द सीट्स इन द पंचायत शैल बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द टेरिटोरियल. दोबारा पढ़ो इसको ढंग से. ऑल द सीट्स इन पंचायत, पंचायत में जितनी भी सीट्स हैं, शैल बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन से फिल होनी चाहिए, फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द पंचायत एरिया. नाउ इसमें कुछ लगेगा कि सर यहाँ पर कुछ नॉमिनेशंस भी तो होती हैं. डायरेक्ट इलेक्शन से सारी की सारी सीट्स फिल होती हैं गाइस, एंड दिस इज करेक्ट ओवर हियर अगेन. सो आंसर विल बी 1, 2 and 3. Now you see this question, which one of the following is not a fundamental duty? Very good question. Again ये fundamental duty, DPSP. Again I am telling you article number 1 to 51 और फिर fundamental duties के 11 clause, ये एकदम टिप्स पे होने चाहिए, राइट. नहीं है तो रोज कुछ ना कुछ करो गाइज. ये आता है क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटी, या तो डीपीएसपी चेक करेंगे. फंडामेंटल राइट चेक करने का टाइम उनका गया, लेकिन ये डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज को जरूर चेक करते हैं. फर्स्ट, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, राइट. टू प्रोटेक्ट द नेशनल एनिमल एंड नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल और नेशनल बर्ड को प्रोटेक्ट करो. ये थोड़ा एब्सर्ड है, ये नहीं लिखा जाता, लेकिन इसके बदले कैन यू टेल मी व्हाट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कुछ लिखा है, फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ लिखा है, एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ लिखा है. ये चेक करके मुझे बताओ, और ये अगर आपको आता है तो कमेंट इट डाउन द होल आर्टिकल, राइट. सो दिस इज नॉट करेक्ट अगेन ओवर हियर. To value and preserve the rich heritage of India's composite culture, yes. To safeguard public property and abjure violence, yes. This is also mentioned, but not B part. This is how they play, guys. So these were the questions which came in your Geoscientist 2023, and now we will be moving towards CAPF 2023. Come to the CAPF, guys. CAPF 2023 questions. Good questions asked in CAPF 2023. This is on the national emergency. Really good questions, guys. Try to solve it again. Pause method, I hope you must be utilizing. So over here, see this, guys. National emergency are correct. Correct, you have to find out the statements related to national emergency. Can you tell me the article number of national emergency? Simple, you all must be knowing. Proclamation of emergency may be made by the president. Okay.
ओनली व्हेन, देखो जब भी ये ओनली वर्ड आता है ना, इसको अंडरलाइन कर लो। अब ये ओनली में अपना दिमाग ये नहीं बनाना है कि ये ओनली अगर आ जाए तो गलत होता है, ऐसा नहीं करना है। ये आज से 6-7 साल पहले जब हमारे टाइम पे वी यूज्ड टू गिव इट, तब ये चीज सही थी। व्हेन वी यूज्ड टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब भी ओनली आता था तो वो स्टेटमेंट हमेशा गलत ही हुआ करती थी, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम। लेकिन इन रिसेंट 5-6 ईयर्स ट्रेंड यू विल बी सीइंग ओनली जब आ रहा है तो प्रॉब्लमेटिक, लेकिन ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, दोनों चीजें हैं यहाँ पर अब। ठीक है, यूपीएससी ऑल्सो नोस दिस, तो डोंट गो विद दिस माइंडसेट दैट ओनली आ गया तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ऐसा नहीं होता हर जगह हर बार। और ये आप एनालाइज कर सकते हो 2023 और 2024 के पेपर में भी। ठीक है, दो ये 2021 के पीवाईक्यू से चेंज देखने को मिल गया था। A proclamation of emergency may be made by the president only when the security of India, any part of there threatened by war and external aggression or armed rebellion. Only नहीं आना चाहिए यहाँ पर, because there are times when before we are threatened by war or external aggression, तब भी president proclamation of emergency कर सकता है. This becomes wrong over here, and rest are the points for you to revise. The government of India acquires power to give direction to a state ऑन एनी मैटर। तो वन जब इनकरेक्ट हो जाता है तो ये आप इसको हटाओ तो डायरेक्टली आप आंसर तक पहुंच रहे हो। ये अदर देन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ इतनी आसानी से पहुंच पाते हो। सिविल सर्विसेज तो आपको ओनली वन ऑप्शन, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर करके देगा। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स पावर टू गिव डायरेक्शन टू अ स्टेट ऑन एनी मैटर, राइट। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डज नॉट सस्पेंड द स्टेट लेजिस्लेचर, दिस इज ऑल्सो राइट। देखो अब यहाँ सेकंड स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। एग्जाम में आपको कंफ्यूजन हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर, आपको लगेगा ये एक्सट्रीम में जा रहा है, कुछ कुछ ऐसे केसेस नहीं, ऐसा नहीं सोचना। एनी मैटर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स पावर टू गिव डायरेक्शन टू स्टेट। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डज नॉट सस्पेंड द स्टेट, दिस इज ऑल्सो राइट। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन कंटिन्यू फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months at a time only if approved by resolution of both the houses of parliament. This is also right guys over here. So your answer will be 2, 3 and 4 because we have to find the correct part. First one is incorrect, तो आप 2, 3, 4 तक पहुंचते हो। very important question, you take it from here guys. Let me tell you, बहुत important question है, आप कंफ्यूज कर जाओगे, 2 आंसर तक पहुंच जाओगे लेकिन 1-2 स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूजन होगी। ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन फर्स्ट ऑफ ऑल। Which one of the following statement with regard to the impeachment of judge? अच्छा सॉल्व जब कर रहे हो तो पॉज कर लो खुद से ही, राइट। आई विल नॉट बी पॉजिंग क्योंकि अदरवाइज अननेसेसरी आई विल नॉट बी मेकिंग दिस वीडियो बिग, राइट। Regard to impeachment of a judge of the Supreme Court of India is not correct. कौन सा करेक्ट नहीं है सुप्रीम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। impeachment of Supreme Court, impeachment of president. A motion addressed to the president signed by at least 100 members of both the houses of parliament is delivered to the speaker. This is incorrect because 100 members तो लोकसभा के and 50 members राज्यसभा के हैं, राइट। तो ये तो हो जाता है इनकरेक्ट। The motion is investigated by a committee of 3, that is 2 judges of the Supreme Court and a distinguished jurist. अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगी गाइस। आपको देखिएगा जब आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिखा होगा, एक लिखा होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट। सॉरी दूसरा लिखा होगा यहाँ पर स्टेट जज ऑफ हाई कोर्ट, दूसरा जो रिक्वायरमेंट होगा, तीसरा डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट लिखा होता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, बट यूपीएससी हैव गिवन द सेम स्टेटमेंट इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द सीएपीएफ ओनली वेयर दे हैव मार्क्ड दिस स्टेटमेंट राइट। ठीक है, तो आपके हिसाब से भी ये राइट होना चाहिए दैट ओवर हियर 2 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड अ डिस्टिंग्विश्ड जज कैन बी देयर, right? So this is right. If the committee finds the judge guilty of misbehavior that he suffers from incapacity, the motion together with the report of the committee is taken up for the consideration. This is right. The judge will be removed after the president give his order for removal. This is also right guys, ठीक है। तो incorrect is this, and good question to revise your impeachment of judge, right? See this easy question now over here. The NHRC was established under the Statute of Protection of Human Rights Act 1993. Very easy. बट ये आपने पढ़ा होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है हम ऐसी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को छोड़ के चले जाते हैं, दैट वी शुड नॉट डू, ठीक है। ओवर हियर गुड क्वेश्चन, जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन एन इजी पार्ट इफ यू नो, डिफिकल्ट इफ यू डोंट नो। 2004 में राइट इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए इन्होंने किया, एंड 2005 में RTI एक्ट वाज पास्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट, जब आप RTI को भी पढ़ते हो, इंफॉर्मेशन कमिश्नर वगैरह को पढ़ते हो, तो आप ये लाइन देखते हो वहां पर ऐसा, ठीक है। इसी पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस के साथ कौन सा डील करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल बी
आपको बढ़िया लगेगा ये जान के, फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट शायद ना जानती हो, लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस करी है क्वेश्चंस की, अदर एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, नॉट इन यूपीएससी, तो इसका आंसर आप ये देख लो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला ओवर है 1976। दिस केस इन्वॉल्व अबाउट दिस हेबियस कॉर्पस गाइस। और ये आया कब था? ये आया था आपका इमरजेंसी के दौरान, दैट ये जो अनलॉफुल डिटेंशन हुई है इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, एंड इट दे कम अप विद दिस दैट हेबियस कॉर्पस शुड बी देयर, राइट। ये जो पहला केस आपको राजनारायण का 1975 में दिख रहा है, ये भी इंदिरा गांधी के अनलॉफुल और जो माल प्रैक्टिसेस हुई थी इलेक्शंस में उससे रिलेटेड था, राइट। व्हाट अबाउट दिस मेनका गांधी एंड यूनियन ऑफ इंडिया गाइस? नाउ दिस यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इन आर्टिकल नंबर 21, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस आर्टिकल नंबर 21 वाज इंपॉर्टेंट फ्रॉम हियर, राइट। एंड दिस नंदिनी सतापति एंड पीएल दानी इज रिलेटेड टू आर्टिकल 20 क्लॉज 3 about the you will be seeing imprisonment of an individual, ठीक है, related to crime, that right of individuals during police questioning में आप देखोगे यहाँ पर, थोड़ा ध्यान रखें इन पर्टिकुलर पार्ट का। which among the following statements regarding the powers of high court, now easy question but important over here, under 26 of the constitution, again not correct, it can issue writs, ये सब writ issue कर सकते हैं, बिल्कुल सही, writs can be issued to enforce any right conferred by part 3 for any other purpose, ये भी ध्यान में रखो, for any other purpose also they can do। The power can derogate the power conferred on Supreme Court under, this is incorrect guys, how can the High Court derogate the power conferred on Supreme Court, right? Supreme Court is the supreme body, and then after that you will be seeing the hierarchical High Court, then lower courts, right? Writ can be issued to any authority under its jurisdiction, this is also right। होता क्या है, कभी कभार हम ये नहीं देखते हैं और अगर हमने ढंग से पढ़ा नहीं है तो हम इनको मार्क कर लेते हैं कि ये शायद ये भी गलत होता है, ऐसा नहीं है, जस्ट फोकस ऑन द कंटेंट अगेन गाइस, ठीक है। इसका मतलब कि रिवीजन सही से नहीं हो पा रही फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग कंफ्यूज इन दिस पार्ट आल्सो, दो आई अज्यूम दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दिस लक्ष्मीकांत ऑन टिप्स, और ये होती भी है, अगर आपके नहीं है तो आप ये समझो कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के ये टिप्स में है। पॉलिटी, इकोनॉमी आर इजी सब्जेक्ट्स और ये इजीली स्कोर भी होते हैं, बाकी हिस्ट्री वगैरह को ग्रेस्प में करना एक डिफिकल्ट टास्क है, राइट। ओके 99, which among the following is not correct? Again this is a good question on concurrent list, state list and union list guys। देखो ये क्वेश्चन 2024 में आपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में देखे थे, एंड यहाँ से आप नॉलेज बिल्ड कर सकते हो अपॉन दिस कंकरेंट लिस्ट, क्योंकि इसमें इतने सारे आइटम्स हैं, ये याद रख थोड़े ना रखोगे, जो पूछ लिया उसको याद रखो बस। लेजिस्लेशन ऑन क्रिमिनल लॉ बारिंग एक्सेप्शन इज अ सब्जेक्ट अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, यस, क्योंकि यहाँ पर स्टेट भी और यूनियन भी लॉ बना सकता है। बैंकरप्सी एंड सॉल्वेंसी आर सब्जेक्ट्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, दिस इज ऑल्सो राइट, दोनों लॉज बना सकते हैं। Interstate trade and commerce is the subject under the state list, this is wrong, this is under union list, and this has been asked in 2024 civil services prelims। अगर आपने ये क्वेश्चन एनालाइज किया होता और आप 2023 सीएपीएफ में आ चुका था और 2024 अगर प्रीलिम्स के लिए आप ये प्रिपेयर करते तो भी आपकी आंखें खुल जाती, दो ये इजी पार्ट है लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत देखते, राइट। बैंकिंग इज एक्सक्लूसिवली अंडर द यूनियन लिस्ट, दिस इज राइट गाइस, तो यहाँ पर ये सही है, दिस इज रॉन्ग, एंड यू हैव टू फाइंड द नॉट करेक्ट ओनली। Which of the following statements about the RTI 2005 are correct over here? There shall not be more than 12 information commissioners। अब जिसने ढंग से नहीं पढ़ा वो यहाँ पर कंफ्यूज कर जाएगा। अगेन आई एम सेइंग, जब यूपीएससी नंबर देता है तो उसको ध्यान से देखो, और ये नंबर फिर इनकरेक्ट है, यहाँ पर 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। The CIC shall hold office for a term of 5 years, right? The CIC commissioner is eligible for reappointment, रीअपॉइंटमेंट भी नहीं होता इन लोगों का, तो 1 and 3 is incorrect, 2 only will be your answer guys। Who among the following was the first pro tem speaker to be unanimously elected as the speaker of the लोक सभा? नाउ फर्स्ट प्रो टेम स्पीकर, जो स्पीकर के बनने से पहले हम कुछ टाइम के लिए जो सबसे रिस्पेक्टेड होते हैं, फॉर सम टाइम वी विल बी इलेक्टिंग देम सो दैट दे कैन डू द प्रोसीजरिंग ऑफ सेलेक्टिंग और द स्पीकर अमंग्स द रूलिंग पार्टी, तो वो थे हमारे सोमनाथ चटर्जी गाइस, ठीक है, उसको ध्यान में रखना, सोमनाथ चटर्जी। अब ये फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इफ यू नो यू नो, अदरवाइज आप तुक्का मारोगे तो गलत होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। So these were the questions you will be seeing in CAPF। Now we will be moving towards CDS 1 of 2023। See this over here guys on SGI। देखो AGI में आपने सॉल्व कर लिया है, अब SGI थोड़ा सा आप रिवाइज कर लो यहाँ से। SGI that is Solicitor General of India is not correct, not correct आपने स्टेटमेंट्स ढूंढनी है। Again over here, the SGI is the government's chief legal advisor, right? The SGI is secondary law officer of the country. First law officer is the AGI। The post of the SGI is constitutional post. This is wrong.
और ये आप सबको बहुत आसान भी लगेगा, बिकॉज वाइल रीडिंग एजीआई तो वहां पर साफ साफ लिखा है दैट दो एजीआई इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड, आर्टिकल नंबर 76 इज मेंशन्ड अबाउट एजीआई, बट देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू एसजीआई ओवर हियर। तो ये एक आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, ठीक है। सी इनकरेक्ट ढूंढना था। और फोर्थ भी पढ़ लो, एसजीआई इज अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट ओवर हियर। कम ओवर हियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज डज नॉट हैव मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा। राज्यसभा से मेंबर्स नहीं है इन कमेटी में। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बिल्कुल है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, एस्टिमेट कमेटी आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर नहीं पता दोबारा जाओ और रिवाइज करो इसको अपनी लक्ष्मीकांत से, जितनी कमिटीज लिखी हैं उनके बारे में पता होना चाहिए गाइस। पीएसी, दिस एस्टिमेट कमिटी, और एक और कमेटी को तो हम पढ़ते ही हैं बाय एंड लार्ज, बट ये वाली कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग भी आप देखो, कमेटी ऑन वेलफेयर, एंड ये थोड़ा इग्नोर्ड वन होती है, इनको भी आप देखने की कोशिश करो, ठीक है। Which one of the following statements about the election of the president of India is not correct? Again, election president India of India के election पे दोबारा क्वेश्चन आपने देखा है यहाँ पर in CAPF. A union minister shall not be eligible for election as the president. देखो अब ये यहाँ पर डाउटफुल हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर डाउटफुल है क्योंकि ये सभी लोग एलिजिबल होते हैं फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ओवर हियर, ठीक है। लेट अस सी, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, दो जब वो प्रेसिडेंटशिप के लिए होगा देन ही हैज टू फॉरगो दिस पोस्ट, राइट। अब दूसरी स्टेटमेंट्स भी सारी देख लेते हैं, उसमें से मोस्ट इनकरेक्ट वी विल बी फाइंडिंग आउट। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इंक्लूडिंग आपकी दो यूनियन टेरिटरीज जो वो मेंशन करते हैं, पुदुचेरी एंड दिल्ली भी इन्वॉल्व है, वो भी इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, गुड, राइट कर दूंगा। इलेक्टोरल कॉलेज डज नॉट इंक्लूड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ओवर हियर, दिस इज आल्सो राइट, बिकॉज यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, काउंसिल्स का कोई काम नहीं है। The system of proportional by means of single transfer, this is also right. So you will go ahead with this even if you were confused. So that first statement is incorrect. The Citizenship Act 1955 deals with the determination of citizenship on after 26th January 1950 when the constitution was came to effect over here, 26 January 1950, right? Important. According, अब ये तो आपका related to economy है, economy में you will be seeing it. Which one of the following is not a part of Article 51 of the Constitution? Again, fundamental duties आप यहाँ पर देखो, तो fundamental duties आपके तो देखो हर एक टॉपिक आपका तो PYQ से रिवाइज हो जाना चाहिए, as far as I'm seeing over here, right? तो आप या तो पैरेलली इनको एक बार देख लो सुबह के टाइम में वाइल रिवाइजिंग पॉलिटी, या तो आप एक पर्टिकुलर स्लॉट यू मस्ट डिफाइन कि आप पॉलिटी अगर 2 दिन पढ़ रहे हो तो उसमें आप कहीं ना कहीं इन वीडियोस को भी गो थ्रू करो। Promote international peace and security, right? Maintain just as an honorable relationship between nations, right? Use of UN peacekeeping force for resolution of international disputes, this is wrong. Encourage settlement of international disputes by arbitration, this is right. तो एक ही आर्टिकल में ये 3 चीजें मेंशन्ड है गाइस, और ये नहीं मेंशन्ड यहाँ पर, तो ये आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा आर्टिकल बनाया है, एक पूरा आर्टिकल आपका है और उसी पे बना गया। सॉरी, नॉट फंडामेंटल ड्यूटीज, इट इज ऑन द टीपीएस, आई एम रियली सॉरी, टीपीएसपी ऑफ आर्टिकल 51 आप देखोगे, ठीक है। 51 के क्लॉजेस में जब आप जाते हैं 51A वो फंडामेंटल ड्यूटीज है। रियली सॉरी गाइस, आई गॉट कंफ्यूज, ठीक है। तो डीपीएसपी आर्टिकल 51 को पूरा ओपन करके रख दिया है इन्होंने, जिसमें ये क्लॉज आपको नहीं मिलेगा, राइट। ओके, कम टू CDS 2 2023 क्वेश्चंस नाउ। सी ओवर हियर गाइस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अगेन पंचायत, देख रहे हो पंचायत कितना इंपॉर्टेंट रहा है, तो पंचायत तो आपका रिवाइज ही हो रहा है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट रिलेटेड टू पंचायत, देयर इज अ प्रोविजन। अब पंचायत के कुछ ना क्लॉजेस भी हैं, ABCD ऐसे करके कुछ जा रहे हैं, वो भी आपको रिमेंबर करना पड़ेगा गाइस, बिकॉज इन द 2024 सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स इफ यू रिमेंबर, म्युनिसिपैलिटी के क्लॉजेस के बारे में पूछ लिया गया था, राइट। तो वो थोड़ा बहुत देखना। अब देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द SCs एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, यस देयर इज। पंचायत आर नॉट ऑथराइज टू कलेक्ट टैक्सेस, ये कैसी अब्सर्ड बात है, ये तो पंचायत को कंपलसरी अथॉरिटी दे रखी है, राइट। तो 2 विल बी इनकरेक्ट, A विल बी करेक्ट, सो वी हैव टू फाइंड द करेक्ट ओनली, तो करेक्ट आ गया हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अगेन ये मिशन से रिलेटेड, दिस इज नॉट रिलेटेड टू ओवर हियर। अच्छा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया है 99, 100, 101, 102, 104, 103, 104 एंड 105, 106 ओवर हियर अमेंडमेंट एक्ट को आप एक बार लिस्ट डाउन ऑन द कमेंट्स गाइस, एक बार लिस्ट करो आप, ठीक है। Which one of the following state amendments of constitution has introduced the reservation in education जो EWS से related है, that is your 103rd amendment act 2019 guys, ठीक है। I hope ईयर भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, वो कब आया है, घुमा फिरा के आप you see the questions how they are giving you। UPSC से थोड़ा सा, सिविल सर्विसेज से थोड़ा सा और ट्विस्ट एंड बिट करेगी इसको थोड़ी, ठीक है।
Which one of the following is not the fundamental right, is not suspended when an emergency is declared? तो दो आर्टिकल ऐसे हैं 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते, ये आपको ध्यान होगा. 21 इज अबाउट राइट टू लाइफ, 20 इज अबाउट द कन्विक्शन. जहां पर भी आपको अरेस्ट वगैरह करा, डिटेन किया वहां उससे रिलेटेड है, और कन्विक्शन से रिलेटेड है बेसिकली. डिटेंशन के लिए तो अलग आर्टिकल है टू बी स्पेसिफिक. तो 20 और 21 नहीं होगा सस्पेंड, बाकी सारे हो जाएंगे. अब ढूंढो यहाँ पर कहाँ लिखा है. प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, दिस इज राइट ओवर हेयर. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये तो 32 है. राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी, आर्टिकल 19. इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14. तो यहाँ पर 21 मेंशन नहीं है कहीं पर भी, तो ये आपका आंसर हुआ. अगर दोनों मेंशन होते तो यहाँ पर फिर ऑप्शन होते ए बी सी ऐसे करके क्वेश्चन देते हैं वो. ठीक है. Any question pertaining to the disqualification of member of Lok Sabha on the ground of defection is decided by the Speaker of Lok Sabha. Very very easy question. ये हर किसी को पता होता है about this, right? Okay guys, so this was all. I hope without wasting your time I have completed this 2023 also. And if you're liking it, do mention. If you're following it, do mention it. I'll be bringing for other subjects too, right? And for here, next part will be on the 2022 questions, guys. Thank you so much. I'll be meeting you in the next session, guys. Thank you so much.